باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ ترجمہ کنز العرفاء، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رجس من عمل الشیطان، ناپاک شیطانی کام ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں چار چیزوں کے نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں: ایک شراب، دو جوا، تین انصاب یعنی بت، چار ازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ ہم یہاں بھی ترتیب ان چاروں چیزوں کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایک شراب، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے تین احادیث درج ذیل ہیں۔ ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی: ایک شراب بنانے والے پر، دو شراب بنوانے والے پر، تین شراب پینے والے پر، چار شراب اٹھانے والے پر، پانچ جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، 6 شراب پلانے والے پر، 7 شراب بیچنے والے پر، 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، 9 شراب خریدنے والے پر، 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ 2 حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ 3 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں شراب کا حرام ہونے کو 10 مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ 1 شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا ہے، 2 بتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، 3 شراب کو ناپاک قرار دیا ہے، 4 شیطانی کام قرار دیا ہے، 5 اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، 6 کامیابی کا مدار اس سے بچنے پر رکھا ہے، 7 شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا ہے، 8 9 شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا ہے، 10 اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔
यहाँ हम शराब नोशी के चंद वो नताइज जिक्र करते हैं जो पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं, ताकि मुसलमान उनसे इबरत हासिल करें, और जो मुसलमान शराब नोशी में मुब्तला हैं वो अपने इस बुरे अमल से बाज आ जाएं। एक, शराब नोशी की वजह से करोड़ों अफराद मुख्तलिफ मोहलिक और खतरनाक अमराज का शिकार हो रहे हैं। दो, लाखों अफराद शराब नोशी की वजह से हलाक हो रहे हैं। तीन, ज्यादातर सड़क हादसात शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हो रहे हैं। चार, हजारों अफराद शराबियों के हाथों बेकसूर कत्ल गारत गरी का निशाना बन रहे हैं। पांच, लाखों औरतें शराबी शोहरों के जुल्म सितम का निशाना बनती हैं। छह, लाखों औरतें शराबी मर्दों की तरफ से जिनसी हमलों का शिकार हो रही हैं। सात, वालिदैन की शराब नोशी की वजह से जिंदगी की तवानाइयों से आरी और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चे पैदा हो रहे हैं। आठ, लाखों बच्चे शराबी वालिदैन की वजह से यतीमी और असीरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। नौ, शराबी शख्स के घर वाले और अहलो अयाल उसकी हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत से महरूम हो रहे हैं। 10, इन नुकसानात के अलावा शराब के इक्तिसादी नुकसानात भी बहुत हैं। अगर शराब की खरीदो फरोख्त और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से हासिल होने वाली रकम और अखराजात का मुवाजना किया जाए जो शराब के बुरे असरात की रोकथाम पर होते हैं, तो सब पर वाज़ेह हो जाएगा कि शराब से हासिल होने वाली आमदनी उन अखराजात के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो उसके बुरे नताइज को दूर करने पर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर शराब नोशी की वजह से होने वाली नफसियाती और दीगर बीमारियों के इलाज, नशे की हालत में ड्राइविंग से होने वाले हादसात, पुलिस की गिरफ्तारियां और जहमतें, शराबियों की औलाद के लिए परवरिशगाहें और अस्पताल, शराब से मुताल्लिक़ जराइम के लिए अदालतों की मसरूफियात, शराबियों के लिए कैद खाने वगैरह उमूर पर होने वाले अखराजात देखे जाएं तो ये शराब से हासिल होने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा नजर आएंगे। और इसके अलावा कुछ नुकसान तो ऐसे हैं जिनका मुआवजा माल और दौलत से किया ही नहीं जा सकता, जैसे पाक नस्लों की तबाही, सुस्ती, बेरारवी, सकाफत और तमद्दुन की पसमानदगी, एहसासात की मौत, घरों की तबाही, आरज़ुओं की बर्बादी और साहिबाने फिक्र अफराद की दिमागी सलाहियतों का नुकसान। ये वो नुकसानात हैं जिनकी तराफी रुपए पैसे से किसी सूरत मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम और हिदायत अता फरमाए और शराब नोशी की आफत बद से नजात अता फरमाए। 2, जुआ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जुए का रुपया कतई हराम है। अहादीस में जुए की शदीद मजम्मत बयान की गई है। चुनांचे जुए के एक खेल के बारे में हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नर्द शेर जुए का खेल खेला तो गोया उसने अपना हाथ खिंजीर के गोश्त और खून में डिबो दिया। और हजरत अबू अब्दुर्रहमान खतमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नर्द खेलता है फिर नमाज पढ़ने उठता है, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो पीप और सूअर के खून से वुजू करके नमाज पढ़ने खड़ा होता है। दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को हर उस अमल और आदत से रोका है जिससे उनका माली और जिस्मानी नुकसान वाबस्ता हो और वो उन्हें अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल कर दे। ऐसी बेशुमार चीजों में से एक चीज जुआबाजी है।
जो कि मुआशरती अमन व सुकून और बाहमी मोहब्बत यकांगत के लिए ज़हर कातिल से बढ़कर है। और कुरान और हदीस में मुख्तलिफ अंदाज से मुसलमानों को इस शैतानी अमल से रोका गया है, लेकिन अफसोस के फी ज़माना मुसलमानों की एक तादाद इस खबीस तरीन अमल में मुब्तला नजर आ रही है, और ये लोग दुनिया व आखिरत के लिए हकीकी तौर पर मुफीद कामों को छोड़कर अपने शब रोज को इसी अमल में लगाए हुए हैं। और उनकी इस रविश का नतीजा है कि उन मुसलमानों की ना तो दुनियावी पसमानदगी दूर हो रही है और ना ही वो अपनी उखरवी कामयाबी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम यहाँ जुएबाजी के 3 दुनियावी नुकसानात जिक्र करते हैं ताकि मुसलमान उन्हें पढ़कर अपनी हालत पर कुछ रहम करें और जुए से बाज आ जाएं। 1, जुए की वजह से जुएबाजों में बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है और बसा औकात कत्ल गारत गरी तक की नौबत पहुंच जाती है। 2, जुएबाजी की वजह से मालदार इंसान लम्हों में गुर्बत और अफलास का शिकार हो जाता है। खुशहाल घर बदहाली का नजारा पेश करने लगते हैं। अच्छा खासा आदमी खाने पीने तक का मोहताज होकर रह जाता है। मुआशरे में उसका बना हुआ वक़ार खत्म हो जाता है और समाज में उसकी कोई कदर व कीमत और इज्जत बाकी नहीं रहती। 3, जुएबाज नफा के लालच में बकसरत कर्ज लेने और कभी कभी सूदी कर्ज लेने पर भी मजबूर हो जाता है, और जब वो कर्ज अदा नहीं कर पाता, उसे कर्ज नहीं मिलता, तो वो डाका, जनी और चोरी वगैरह में मुब्तला हो जाता है। हत्ता कि जुएबाज चारों जानिब से मुसीबतों में ऐसे घिर जाता है कि बिल आखिर वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए और उन्हें शैतानी अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। 3, अंसाब। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इससे मुराद वो पत्थर हैं जिनके पास कुफार अपने जानवर ज़िबा करते थे। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इससे मुराद बुत हैं क्योंकि उन्हें नसब करके उनकी पूजा की जाती है। अल्लामा अबू हयान मोहम्मद बिन यूसुफ अंदलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर अंसाब से मुराद वो पत्थर हों जिनके पास कुफार अपने जानवर ज़िबा या नहर करते थे, तो उन पत्थरों को नापाक इसलिए कहा गया ताकि कमजोर ईमान वाले मुसलमानों के दिलों में अगर उनकी कोई अजमत बाकी है तो वो भी निकल जाए। और अगर अंसार से मुराद वो बुत हों जिनकी अल्लाह ताला के अलावा इबादत की जाती है, उनके पास जानवर ज़िबा किए जाते हों या नहीं, तो उन्हें नापाक इसलिए कहा गया ताकि सब पर अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए कि जिस तरह असनाम से बचना वाजिब है, इसी तरह अंसाब से बचना भी वाजिब है। 4, असलाम। ज़माने जाहिलियत में कुफार ने 3 तीर बनाए हुए थे, उनमें से एक पर लिखा था हाँ, दूसरे पर लिखा था नहीं, तीसरे पर लिखा था खाली, तीसरा खाली था। वो लोग इन तीरों की बहुत ताजीम करते थे और ये तीर काइनों के पास होते और काबा मुअज़्ज़म में कुफार कुरैश के पास होते थे। जब उन्हें कोई सफर या अहम काम दरपेश होता तो वो इन तीरों से पासे डालते और जो इन पर लिखा होता उसके मुताबिक अमल करते थे। परिंदों से और वहशी जानवरों से बरशगुन लेना और किताबों से फाल निकालना वगैरह भी इसमें दाखिल है। अहादीस में काहिनों और नुजूमियों के पास जाने की शदीद मजम्मत की गई है। इनमें से 3 अहादीस दर्ज झेल हैं।
एक हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी नुजूमी या काहिन के पास गया और उसके कौल की तस्दीक की तो गोया उसने उसका इनकार कर दिया जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। 2 हजरत वासिला बिन अस्का रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो काहिन के पास आया और उससे किसी चीज के बारे में पूछा तो 40 रातों तक उसकी तौबा रोक दी जाती है, और अगर उसने इसकी तस्दीक की तो कुफ्र किया। 3 हजरत कबीसा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत खींचना, फाल निकालना और परिंदे उड़ा कर शगु लेना जिब्त यानी शैतानी कामों में से है। इस आयत से 2 मसले मालूम हुए, एक सिर्फ नेक अमाल करने से कामयाबी हासिल नहीं होती बल्कि बुरे अमाल से बचना भी जरूरी है। ये दोनों तकवा के 2 पर हैं, परिंदा एक पर से नहीं उड़ता। 2 नेकियां करना और बुराइयों से बचना दुनिया और दिखावे के लिए ना होना चाहिए बल्कि कामयाबी हासिल करने के लिए होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।